ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰੀਏ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀਏ। ਇਹ ਹੀ ਸੋਹਣਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਈਆਂ ਨਈਆਂ ਨਿੱਤ ਨਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਬਈ, ਇਹ ਬਰਬਰੀ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਫਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਹ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਇੱਕ ਪਰਫਿਊਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਤਰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਫਿਊਮ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾ। ਅਤਰ ਅਲੀ ਇਹ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਫਿਊਮ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਰ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਸਨ ਪਏ ਅਤਰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ। ਬਾਕੀ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੂਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦੀ ਰਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕੜੇ ਕੁੜੇ ਚੂੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੋਲਡ ਦਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬਕਵਾਸ $50 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਸ਼ਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਭੇਜਿਆ, 2 ਚੂੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $50 ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨया ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਤੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਔਡਰ ਕੀਤਾ। ਔਡਰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਂਟੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫੇ ਹੀ ਰੱਖ ਛੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਿੱਬਤ ਕਰੀਮ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਇਲ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ E ਆਇਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਆਇਲ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਗਲੈਸਰੀਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਗਲੈਸਰੀਨ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ E ਆਇਲ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਆਇਲ। ਇਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਕਅਪ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੌਂਡਸ ਦੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੇਬਲ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੇਕਅਪ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਔਰ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੇਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਬਲਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡਰੋਬ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਰਡਰੋਬ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਪੈਂਟਾਂ ਬੁਣਨਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ।
यह सारा सिलसिला थले पर्स में रखे ने अपने। मैं क्या अज तो दहानी जरा अपना इधर भी यह भी मेरे कपड़े ने, यह मैं बुक थले लैके जा रही सा पढ़नी। अच्छा यह देखो यह भी कपड़े ने वार्डरोब ते अलहदा ने, है ड्रॉज अलहदा, ड्रॉज भी भरे पैने हुन। दसो मैं असी औरतां कपड़े किन्ने बनानियां वा, जवाबदेही भी होंदी है सारिया चीज़ों की। यह देखो यह कपड़े और रोड दुपट्टिया ना खाना भरिया पे, यह वाला मेरे यह दुपट्टिया ना भरिया पे। और यह मेरे पजामे वगैरह, यह भी ये सारे मेरे पजामे वगैरह ने ये पे जेह्ड़े मैं यूज़ करनी हाँ, रात का ड्रैस। और ये दो जेह्ड़े ने मेरे, यह मेरा गर्मियां का खाना है, गर्मियां के कपड़े ने सारे इत्थे। और उधर भी मैं तुहानूं दखाए ने हैंग होए, यह मेरे सर्दियां दे ने जेह्ड़े सर्दियां दे रखे हैं। बस यह जे मेरा कुल मता मेरे कमरे की जी मैं तुहानूं दिखाती है, तुसीं देख लेता कमरा। ये बाहर खिड़की भी हो रही, बाहर का व्यू बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है इत्थों अगर देखो तो। लेकिन असी सारा दिन तो उत्ते आते ही नहीं, सारा दिन असी थले रहने तो सोने वास्ते आने। तो अल्लाह ताला खैर करन, परवरदिगार सोने वास्ते आवांगे। ठीक है किताब पढ़ लवां, ये मेरी किताब है। हुण मैं थले जावांगी। एक है साडा बेडरूम, असी गैसट रूम बनाया है कि कोई गैसट अगर आएंगे, अव्वल तो इत्थे गैसट ही नहीं आते, गैसट कितों आने। तो यह गैसट कोई आन, यह कमरा जो है फिजा का भी है वाला, और उधर भी फिजा रहा जो ना सिटिंग रूम, पर वो अंदर गई है चूँकि एक्सरसाइज शायद कर रही है या कुछ कर रही है। यह वाला यह सिटिंग उन्होंने सारा ना सिटिंग रूम दिखा देनी है थोड़ा जिन्ना था। ये देख ये फिजा मोइस का सिटिंग रूम है, जो मतलब लाउंज समझ लें उनका। ये कमरा हमने वो बना दिया होगा। वो फिजा की अलमारी वार्डरोब है। ये मोइस और फिजा इधर बैठ के टीवी देखते हैं। ये टीवी है इनका इधर पड़ा हुआ बड़े वाला ना, ये ये सारा इनका ये टीवी है। मोहित जान जो है ना इस टीवी में बैठ के देखता है, अपना इधर लेट जाता है, आता है जब जॉब से, और फिर मज़े से ना टीवी देखता है। ये इधर बाहर का व्यू भी इनका बड़ा ज़बरदस्त है। ये मेन क्योंकि फ्रंट पे ये कमरा है, और इनके दोनों कमरे फ्रंट पे हैं। एक इनका बेडरूम भी और एक इनका ये जो है सिटिंग रूम भी। ये इनका कमरा है। मैंने कहा कोई नहीं है, बाथरूम है फिजा। ये फिजा लोगों का कमरा है, फिजा और मोहित जानू का। अल्लाह खुश रहें और परवरदिगार करम हो इन पे अपना। और ये ड्रेसिंग टेबल है फिजा की। ये साथ ज्वेलरी बॉक्स था, किसी ने हमें गिफ्ट किया था, तो मैंने कहा यूज़ करो, यूज़ क्यों नहीं करती, तो फिर यूज़ ये कर रही। और इधर भी इनका बाहर का व्यू देखें, यहाँ से भी बाहर का व्यू नज़र आता है। ये सारा ये मोइज़ जान ने अपनी पसंद का कमरा सेट किया था। अभी खैर करेगा, अभी तो किया नहीं है, मगर ये ऊपर घड़ी वगैरह जो लगाई ये इसने खुद लगाई बड़े शौक से। ये मोइज़ की वार्डरोब है, इधर दोनों की लहता है। मेरी वो वार्डरोब है जो मैंने आपको दिखाई है, और ये जो गेस्ट रूम है इधर असद साहब की ये वार्डरोब, ये असद साहब की, और वो मेरी है। इधर हमने इससे स्टैंड भी रखा हुआ है। ये सामने पियानो पड़ा हुआ है, क्योंकि असद साहब का पियानो का बजाने का उन्हें बहुत शौक़ है, और वो पियानो बजाते हैं, कभी कभी इंजॉय करते हैं। ये तो नहीं अभी वो स्विच लगा हो तो ये चलता है। तो ये असद साहब का, इधर हमारा बाहर का सारा व्यू आपको नज़र आता है, क्योंकि हमारे कमरे बैक पे हैं और फिज़ा और मोइज़ का कमरे दोनों जो हैं फ्रंट पे हैं। ये ऊपर 4 बेड हैं इसके, और नीचे जो है हमारा बेसमेंट में भी 2 बेड हैं, किचन है। इस तरह ये
6 बेडरूम और 3 बाथरूम का घर है। ये मैं नीचे जाती हूँ। नीचे तो हम दिखाते ही रहते हैं आपको हमेशा ही, आपको पता ही है, तो नीचे का इतना नहीं है। मैंने कहा आज आपको ऊपर का दिखाऊं। ये मेरे मोए जानू की कितनी क्यूट तस्वीर है ना, जो मैं माँ ने लगाई हुई है। आपको पता है माँओं को इस चीज़ का बड़ा शौक़ होता है, अपने बच्चों की तस्वीरें लगानी, क्योंकि बच्चे ही तो हमारी कुल मता होते हैं। परवरदिगार इनको ज़िंदगी दे, आमीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद एंड फैमिली का व्लॉग। एक नया दिन नया व्लॉग लेके हाज़िर खिदमत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी और सेहत तंदुरुस्ती के साथ हम सबको जगाया, हमें एक नया दिन दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई पता नहीं होता कि ये दिन पूरा हमारा है भी कि नहीं है, तो इस वजह से बस हर वक्त कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम अल्लाह की ताबेदारी कर सकें। परवरदिगार, ये आज मैंने जो है ना इस पर दाल चढ़ाई है सुबह सुबह। कल हमने वो चिकन पकाया था, आज हमने ये चने की दाल है और माश की दाल, 2 मिक्स दालें हैं, लेकिन पक रही हैं अभी। मैंने कहा आपको ये दिखाती हूँ। बाकी किचन डाइनिंग ये सारा आप जानते हैं, बैक यार्ड जो है, फ्रंट भी, हमेशा आपसे उसी पे बातें होती रहती हैं, आपको पता ही है। तो इसलिए मैं ऊपर से आपको दिखाया है सारा कुछ। मैंने कहा आपको पता चले, क्योंकि कई दफ़ा मेरी कई बहनें बेटियां ये कहती हैं कि अपना घर ज़रा टूर कराएं, घर का टूर कराएं। तो शायद मैंने पहले कोई थोड़ा बहुत करवाया हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कहा फिर करवा देते हैं। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, सारे घर एक जैसे ही होते हैं, जियों से रौनकें होती हैं घरों में। हमारे अम्मी जी ने यही कहना कि बेटा जियां, मेरे अब्बा जी ने अपने जियां दी सलामती लिए दुआ किया करो, अल्लाह ताला और जिंदगी देवे। घर थे जेह्ड़े ना, मैं तुहानूं दस्सां, घर थे अपने सज्जन मित्रा नाल, अपनी औलाद नाल, अपने खामदा नाल सजदे ने। घरां दा होर कुछ नहीं जे, खुआ तुसी छोटा खा रहे तो खुआ वड्डा खा रहे, जियां दे नाल ही घर सजदे ने। ते इस गल्ले दुआ करिया करो कि अल्लाह जियां नूं सलामती देवे। बाकी मैं कहा साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये जेह्ड़े चीज़ां फैलियां ही हैं वो भी नाल खा लो। बस एकदम ना पैरी चो जुत्ती देखो निकल गई है, अल्लाह खैर करे परवरदिगार। मैं क्या तारे ना गलबात ज़रा कर लीजिए, तो फिर हम जो है ना दूसरी कोई और बात करेंगे। ऐसे ये हो गया हमारा आज का व्लॉग। आपने देखा होगा कैसा लगा आपको, क्योंकि उस व्लॉग में भी बड़ी चीज़ें थी। हम कल ये अभी हो रहा है, अभी ये होता रहे आराम से। मैंने हल्का आँच पे ये दाल रखी है, बहुत हल्की आँच। ये देखें मैंने बहुत हल्की आँच पे ये दाल रखी है। अच्छा जी, बाकी तो सारा ठीक ठाक है, ज़िंदगी गुजर रही है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। हमारा काम वो बाहर जो है वो शुरू तो होने वाला है। बाहर से थोड़ा आपको बाहर की ग्रीनरियाँ दिखाऊँ, क्योंकि ये मुझे बड़ा शौक़ होता है कि मैं अपने व्यूवर्स को ना अच्छी अच्छी बातों के साथ ग्रीनरियाँ भी दिखाया करूँ, क्योंकि ग्रीनरी भी आपको पता है एक अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक की बरकत है। तो ये है जी हमारी ग्रीनरियाँ। वो इसको सब कह रहे हैं कि इसको रिमूव करो बेटा ग्रास मूवर से। तो अब वो जॉब पे जा रहा है। दूसरा ये है कि हमारा वो सामान आ गया। आपको ये दिखाना चाहती थी कि ये हमारे स्टोर का पुराना, देखें ये है उनका सारा ना, ये देख रहे हैं, ये स्टोर का पुराना मटेरियल ये सारा लगा हुआ है इस वक्त, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मगर अब हमने ये नया मटेरियल लेके आए हैं।
ये सारा इन्होंने लगाना है। अब ये सामान आ गया जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, ये सारा सामान आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा खुलेगा, खुले वो भी पड़ी हुई है, तो ये सारा लगेगा सामान। अब ये एक साइड है, चारों तरफ उन्होंने ना इसको नया कर देना। वो साथ वाले हमसाए भी जो हैं अपना सफाइयाँ सुथराइयाँ कर रहे हैं, दूर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने कहा आपको ये बताऊंगी। अब ये सामान जो ही इस स्टोर को साथ चारों तरफ नए सिरे से हम जो है ना स्टोर को कवर कर रहे हैं, और नया इस पे वनाइल लगा रहे हैं ताकि नीचे वाली नहीं छेड़ी हमने, ऊपर हमने कहा एक नई लगाई, क्योंकि ज़रा एक नई लुक आ जाएगी। और दूसरा ये है कि नई लुक के साथ साथ यहाँ बर्फ़बारी होती रहती है, ये वो, तो पानी भी तो पड़ता रहता है ना इस पे बर्फ़बारी के पॉइंट। तो मैं अंदर, क्योंकि बाहर जो है ना धूप बड़ी है आजकल, आपको पता है ना, इधर ये गर्मी की लहर आई है, लेकिन अंदर चूँकि ये सेंट्रली एसी हैं तो हमें पता नहीं चलता। अगर बाहर जब जाते हैं सड़क पे, जब जैसे कल हम गए थे लाइब्रेरी में, तो फिर पता चलता है जब वॉक आप करके जाते हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में भी एसी, अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, जो मॉल पे जाते हैं, तो वो भी सेंट्रली एसी। तो यहाँ यही है, जब बर्फ़ भी पड़ती है तो अंदर सेंट्रली हीट हो जाती है, गाड़ियों में हीट है, ऑफिस में जाएं हीट है, और मॉल में जाएं हीट है। मतलब बस इतना सा आपको फील होता है गर्मी या सर्दी जब आप बाहर निकलते हैं और पैदल कुछ करना चाह रही होती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ जो है ना पाकिस्तान वाली गर्मी नहीं है, ये मैं बता दूँ। धूप बहुत है लेकिन यहाँ ठंडी ठंडी हवा भी साथ चलती रहती है। आप अगर धूप में जा रहे हैं ना तो हवा ज़रूर होगी। अब कल हम गए थे जैसे कि, तो हवा भी थी लेकिन धूप बड़ी शक्ल, दोपहर ही ऐसे लग रहा था सर के ऊपर सूरज है। तो उस वजह से हमें बड़ा ही फील हो रहा था। जो यहाँ रहते हैं उनको बहुत फील होता है इस चीज़ का ना। तो चलें ठीक है, बातचीत मैंने कहा कर लूँ अपनों से, अपने सज्जन मित्रों से सलाम दुआ कर लूँ, और फिर तो बात चलती रहती है सारा दिन ही आपके साथ। ठीक है, ओके जी, करते हैं फिर आपसे बातचीत। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बड़ा बिज़ी हुए हुए हैं जी आजकल। वो हमने पीछे भी अपना काम शुरू किया है, जो स्टोर के ऊपर करनी थी ना पैनलिंग, उसकी भी बड़ी गेम खेली गई है। उसको बुक कराया, वो कहता जी मैं इधर आया हूँ ड्रॉप करने, कोई घर में नहीं था, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मैं चेक करने गया हूँ कि ये ठीक कह रहे कि नहीं, पता चला झूठ बोल रहे। वो उधर ही होम डिपो पे उसको उतार के चला गया। उनकी खिंचाई की है, उन्होंने कहा जी माजरत चाहते हैं, हम आपको फ्री डिलीवरी कर देंगे। तो कल उन्होंने भेज दी है, और ये इन्होंने पैनलिंग आदिल भाई ने शुरू कर दी है लगानी। शायद आपको नज़र आ रही है, यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखे ना, अभी 2 पैनल ही लगे हैं। ये सारे स्टोर पे ऐसे लगना है इसने ना, ऑल 4 साइड्स। तो ये सामान ला के रख ले जी, इनका TTPP कर लें। दिखा TTPP के अगर मैं तो कह रही हूँ कि कपड़े इस्त्री करूँ, मैं सो बैठी ना, इसमें ही सो गई, इन्हीं में सो गई, कपड़े तो इस्त्री करने वाले हैं। और नहीं यार, ये क्या सो गई तो वो सलवटें पड़ गई हैं सारी। आप कौन सा जस्टिन ट्रूडो की बीवी से मिलने जा रही हैं? इधर ही तो है सारे शहर मॉलों में और इधर उधर। फिजा जान ने क्या पहना है? फिजा जान के कपड़े देख ले। गर्मी कितनी ज्यादा है। तो अंदर तो पता नहीं लगता सारा दिन, अंदर ठंड है बाबा, एसी चल रहा है। हाँ, वो इसको लेने निकले हैं, साथ हम भी बैठ गए। हमने कहा कि हम भी चलते हैं। सर मौसम ज़रा आज गर्म है, बाहर निकले हैं तो एहसास हुआ है। अंदर तो सारा दिन ठंडा था ना, तो भी बाहर निकले तो अब हमें भी इद्दत है। तो अच्छा है, यहाँ ज़रूरत है। क्यों सर? यहाँ तो मौसम की गर्मी की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ हमेशा ये गोरे तो बल्कि ना जो 4-5 महीने बर्फ़ पड़ती है या ठंड होती है, उसमें इनकी जो है ना हड्डियाँ शड्डियाँ सब चूसा चूसी हो जाती हैं। तो वो तो बेचारे अल्लाह से मांगते हैं कि कोई धूप मिले। वो कच्छा पहन के जो है ना ऐसे
पड़े होते हैं घर के बाहर। तो कई बार 911 कॉल करके मैंने कहा एक डेड बॉडी पड़ी है ले जाओ, वो अच्छा, हिलते भी नहीं है, हिलते भी नहीं है। वो डेड बॉडी नहीं होती, वो बस वैसे ये ऐसे क्या अजराए मजाक ये कह रहे हैं कि वो डेड बॉडी की तरह पड़ी होती है। हाँ, और मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई उनको जो है ना डाकू पड़ गया है, कपड़े भी ले गया, घड़ी भी ले गया, उसका पजामा भी ले गया, सब कुछ ले गया और बर्फ- उसको जो है बेहोश करके फेंक दिया। इनका मतलब है कि बर्फ की जरूरत है यहाँ, ये गर्मी की गर्मी जरूरत की है यहाँ। जरूरत है। गोरा तो एंजॉय करते हैं, हमारे तो सारी जिंदगी हमने 50-55 में गुजारी है, 45 से 55 प्लस पे हमने गुजारी है। नहीं 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 नहीं, 45 तक बड़ी याद होती थी हमारे दौर में सर, नहीं, तो नहीं। तौबा तौबा कर देते थे। अब 50 तक जा रही है, क्यों फिजा? अब जा रही है 49-50, हमारे होते नहीं जाते थे उस वक्त। फिर भी कोई हवाएं चलती थी, दरख्त थे। अब जो दरख्त काट दिए ना, नहीं, बस दरख्त उस तो उधर वजह भी से। उस वक्त थे दरख्त, वाकई काफी बहुत थे। दरख्त था, अब तो दरख्त ही काट दिए। मैं क्रिकेट खेलता था, हाँ, दरख्त याद करें। सुबह 9 बजे 8:30 बजे मैच शुरू होता था, 5-6 बजे ख़त्म होता था और फुल गर्मी में, और पता भी नहीं चलता था। अब ये जो है इधर गर्मी थोड़ी सी पड़ती है, हालांकि उससे आधी है। यहाँ पे 20-25-30 20-25-30 रहती है, उधर 40-50 40-50। लेकिन ये अब बड़ी फील होती है, इसमें तो क्रिकेट खेल भी नहीं सकते। नहीं, लेकिन उसकी वजह ये है कि इसका सूरज जो है ना वो बिल्कुल है ना ऊपर है, इधर ह्यूमिडिटी है ह्यूमिडिटी वो भी थोड़ा और असर सूरज ज़्यादा भी। करती है। सूरज भी कहते हैं इसका बिल्कुल, दुनिया का ये वो कोना है कि जहाँ सूरज बिल्कुल ऊपर है इसकी, ये भी एक वजह है। हाँ, वो ऐसे ही है ना, वो कहते हैं ना कि पहाड़ पे चढ़ के दुआ मांगो तो अल्लाह करीब होते हैं, सुन लेते हैं। तो ये भी जो है अल्लाह के करीब है, कनाडा ऊपर है ग्लोब के। आप ग्लोब के ये ऊपर है, इस वजह से सूरज जो है ना, की करिए फिर भाई, सूरज जरा चमकदा अपनियां ਜਦੋਂ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ है। तो ये मोए साहब की मेरे साथ भी ये फिजा जान का भी, मैंने कहा पोर्ट्रेट ले लूं आपको। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मोहित जान का भी जाइंट टाइगर College. वो बस ये कि ऐसा ज़रफ़ा में शुश्तन और दिगा चीज़ा कर परहेज़ी खाते हैं। चलो ठीक है, ओके 3-4 मिनट्स में आए। ओके हाँ ये वाला साइड है सर, काम कोना जो अव्वल में तो मेन ऑफिस के असर। मेन जो आ रही है। ठीक, ओके, मैं आए बस। ओके मोहित का मैसेज था और वो कह रहा था कि अभी तक आए नहीं। अभी अच्छा आप मिस कर गए, पीछे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मारी हुई थी गाड़ी, ठोकी हुई थी किसी ने। बड़ा बूढ़ा कोई नहीं है, बस एक एक्सीडेंट हो जाता है। इनका जो पेपर वर्क है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इन्होंने क्लेम देना नहीं होता, तो ये एक चीज़ें इकट्ठी करते हैं कि कहीं से राय फरार मिल जाए। इंश्योरेंस वाले ओ अच्छा, आपने इशारा नहीं दिया था, ख़त्म, कुछ नहीं देंगे, ख़त्म। बड़े चालाक लोग हैं। तो वो जो पेपर वर्क है ना, उसमें यहाँ पे है कि कभी भी कोई हादसा, कोई इंसिडेंट हो, 3 यूनिट्स ज़रूर आते हैं। एक जो है मेडिकल, एक फायर डिपार्टमेंट और एक लोकल पुलिस, इन तीनों का होना ज़रूरी होता है। तो ये इंश्योरेंस को कवरेज भी मिलती है और इन्फॉर्मेशन भी एक्यूरेट मिलनी चाहिए। ये उनका एक असूल है कि पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिले। लेकिन यहाँ का इंश्योरेंस सिस्टम आपको पता है कितना जालिम है। पैसे आप भरते रहते हैं, आपने इंश्योरेंस मतलब गाड़ी की लेनी ही लेनी है, पैसे भर रहे हैं, लेकिन जब कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है तो ये आपकी इंश्योरेंस बढ़ा देते हैं। ये कितनी मतलब बदकिस्मती है कि एक तो उसका नुकसान हो गया इतना ज़्यादा, दूसरा वो इंश्योरेंस दे रहा है, वो किस चीज़ का इंश्योर है? ये गाड़ी का इंश्योर है ना, कि गाड़ी को कोई झटका लगेगा, कुछ होगा या नुकसान होगा तो हम भरेंगे, इंश्योरेंस तो ये होती है। मगर यहाँ ये है कि आपका झटका लगा तो लोग बेचारे छुपाते फिरते हैं कि इंश्योरेंस को ना पता चले, क्योंकि इंश्योरेंस बढ़ जाएगी।
हालांकि वो इंश्योरेंस उसको एडजस्टमेंट दे देती है, लेकिन वो उसका प्रीमियम बढ़ा देती है। अगर वही। 250 है तो वो 300 कर देगी महीना। वो चले 6-7 साल तक वो ज्यादा या $50 ज्यादा दिया यानी जाए। ये कितना जुल्म है ना, ये एक तो नुकसान ये उसका भी हुआ। जुल्म कम है। जो असल जुल्म है वो ये है कि आप चाहे 7 स्टार ड्राइवर हो, कोई क्लेम नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई टिकट नहीं, कुछ भी नहीं, परफेक्ट चला रहे हैं आपकी भी बढ़ा देंगे वो दस क्यों? का है। वो कहते हैं जी आप तो ठीक है भगवान बन गए हैं, लेकिन जो दूसरे हैं ना आपके एरिया में, उनको हमने बड़ा क्लेम दिया है, उन पे बड़ा पैसा लगाया अब है, वो आप क्लेम तो वो देंगे। पैसा हम सबसे फिर वापस लेते हैं। मतलब पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। अब बिजली चोरी जो होती है उधर, तो वो गवर्नमेंट कहती है कि बिजली चोरी आपसे ही हम लेंगे ना, और किससे लेना है। और बिजली जो फ्री में दी जा रही है वो भी हम दे रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान में तो लुटिया डूबी पड़ी है ना, आपको पता है। इधर भी एक्चुअली यही चीज़ है। वैसे तो यही निज़ाम जो है ना असद, मेरा ख्याल है असद साहब के, उन्होंने ना यही निज़ाम अब हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी अपना लिया। अब मैं ना आज बता रही थी कि इतने चालान कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं लाइसेंस, तो हमारा तो आपको पता है लाइसेंस का रिवाज ही नहीं है उधर, किसी चीज़ के भी लाइसेंस का रिवाज नहीं है। तो अब वो लाइसेंस को के लाइसेंस बनवाओ और धड़ाधड़ चलान हो रहे हैं, धड़ाधड़ चलान हो रहे हैं। ये बस ऐसे ही है। मैं ये चीज़ हैरत ज़दा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, इनकी पेंशन क्यों लगी है जी, इनका मेडिकल क्यों फ्री है जी, इनको जो है प्लॉट क्यों मिलता है जी, फौज को क्यों मिलता है प्लॉट। भाई क्या करते हैं वो कि आप उसको इतने और ज़्यादा प्रिविलेजेस देते और हैं? जो सेनेटर हैं बैठ के लड़ाइयाँ करनी या ये करनी, क्या करते हैं वो? और उनको ताहयात ड्राइवर, खनसामे, गाड़ी और ये जहाज के टूर की टिकट्स, ये क्या ताहयात, वो उतर भी जाएगा तो। और फिर ये जो है बिजली फ्री, पानी फ्री, टेलीफोन फ्री, पेप्सी, पेट्रोल कोक फ्री, बर्गर फ्री। अब इससे कमाल है अंदाजा यार। लगाएं कि ये जुल्म है कि नहीं है। नहीं गरीब करते तरीन क्या है, कौम उनको पे। रीजन बताए ना कि क्या करते हैं जिसकी वजह से फ्री। या तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया है जैसे कोई कायदे आज़म पूछेगा है। सद, मेरी बात सुने, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम इनसे हम बात जो करें अपने वारस हैं viewers से। पाकिस्तान के व्यूवर्स, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप वारस हैं इस पाकिस्तान के, और जब आप पूछेंगे नहीं तो वो जवाब किसको देंगे? असद साहब कह रहे हैं ना, वो पूछते क्यों नहीं कभी किस चीज़ का? चलो दसो तो सही, ले लो तो। नहीं व्यूअर्स हमारे कुछ लेकिन- इसमें अपनी राय दें, आप बताएं कि भाई क्या वजह है, वो करते क्या है कि उनको जो है सारी ज़िंदगी के लिए पेट्रोल फ्री, सारी ज़िंदगी के लिए बिजली फ्री, या कोई पार्टली चीज़ें फ्री। हैरत है यार, मतलब ज़मीनें फ्री जर्नलों को और ब्रिगेडियर्स को और मेजर कर्नल को, सबको। अब ये स्पीकर जो था कौमी असेंबली का, क्योंकि जजों ने भी बहुत बढ़ा लिया अपनी, उन्होंने भी कोई 25-25 लाख, और उनको भी यही सिलसिले जो सेनेटर को मिले हैं वही जजों को। अब वो जो स्पीकर असेंबली का है, उसने सोचा कि मेरा स्टेटस इनके मुताबिक है, मेरा दर्जा इनके मुताबिक है जजों के। तो आप यकीन जाने व्यूवर्स, आपको शायद पता ही होगा कि 2 लाख से 2.5 लाख से वो 11 लाख तनख्वाह पे चला गया, और बाकी फैसिलिटीज़ का तो जवाब ही नहीं है ना, आप सोच ही नहीं सकते। यानी 11 लाख पे वो चला गया, 2 लाख से एकदम से छलांग लगाई है उसने। और दूसरा वही फ्री उनको जहाज़ के खर्चे, ताहयात मुलाजम, ताहयात फ्री, सफ़र बैरूनी अंदरूनी, पेट्रोल, गाड़ियाँ, ये सब ये गरीब कौम, ये पाकिस्तानी कौम पे जुल्म हो रहा है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं जो कौम नहीं उठती, कुरान पाक के अल्फाज हैं, उस कौम पे फिर जालिम लोग मुसल्लत हो जाते हैं, और यही उनकी सज़ा होती है। तो ये जालिम लोग मुसल्लत हैं इस वक्त, बिल्कुल। और यही आपकी सज़ा है, हमारी सज़ा है। मैं तो कई बार पूछ के बूढ़ा हो गया हूँ, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया तो का कि वाकई कोई लॉजिकल जवाब हो कि ये क्या करते हैं कि जो इनको आप इतने प्रिविलेजेस देते हैं, इतना कुछ देते हैं, क्या करते हैं। कभी आप देखें ना, ये जो प्राइवेट सेक्टर है, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, 16-18 घंटे काम करता हूँ, ठीक है। अब ये कुछ
है ना, मतलब काम कर रहा हूँ 16-18 घंटे डेली, तो मेरे जैसे आदमी को ज़्यादा प्रिविलेज मिलना चाहिए या उनको जो कुछ कर नहीं रहे या सरकारी बेनिफिट्स ले रहे? मोहित जिधर है? मोए साहब वो आ गए। आ गए? मैंने कहा हाँ, पिक हाँ, कर लूँ हाँ, उनको। हाँ, हाँ, ये हाँ। देखें जी, आ गए मोहित साहब जी। ये वो बैठ गए। वालेकुम अस्सलाम। सलाम व्यूअर्स को भी हो गया कि नहीं हुआ? व्यूवर्स को सलाम किया कि नहीं? ओके। चले चलते हम हैं। रास्ते में दिखाते हैं। ग्रोसरी तो कभी खत्म होई ही नहीं, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁਝ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਠਰੋਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ग्रोसरी कर लेंगे। इंडिया बाज़ार से आए हैं, इंडिया बाज़ार से हम देखेंगे क्या ग्रोसरी कोई हमें मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। बेटा ये पकड़ ले फिर। ये सारी देसी सब्जियां यहाँ आपको मिलेंगी, सारी की सारी। खीरे लेने आए हैं पूरा खानदान। चौथा मैं हूँ जो नज़र नहीं आ रहा। मैं भी इस फौज का एक सिपाही हूँ जो सिर्फ खीरे लेने आए हैं, पूरा खानदान। कौन सा प्याज? अच्छा ये वही वाली मूलियाँ जो सनी में बिक रही है। पाकिस्तान की है ये। नहीं ये पाकिस्तानी नहीं है, सनी वाली हैं, लेकिन कीमत उन्होंने $4 लगाई है। महंगी है ये? हाँ महंगी लगाई हुई है, सनी में 199। आ जाओ। सिर्फ खीरे लेने खानदान आए हैं, सिर्फ खीरे खानदान पूरा पूरा। मेरा मीठे का दिल कर रहा है। फिजा जान कर रहे हैं ना? क्या खाएं आज? ई चीज है। मोहित आपकी चीनी भी लेनी है। ई बुखरम, ये जलेबी बिगिरम चिकर है। $6.99। टू मच। केयरफुल तू। गुलाब जामुन कच्चा ना बीरून भी बनाया तो रहा, कच्चा ही उतर जाए थी। चीनी कहते हैं शुगर शुगर केन। केन ऊपर बना हुआ है शुगर केन। नहीं लिखा होगा ना, ये अभी हिंदी में लिखा है। ले जी हमारे नेशनल के मसाला जात कनाडा में भी हैं। फील प्राउड मैन, नेशनल द पाकिस्तान। और चाचा MDH भी है, चाचा MDH, ये बड़ा फेमस चाचा है। नेशनल की सारी चीज़ें, कीमा, कढ़ाई गोश्त, दिल्ली निहारी, फिश मसाला, कोफ्ता, कोरमा, चिकन मसाला, वाह। चटपटा पकौड़ा मिक्स, दही भले, वाह जी वाह। ये सारा कुछ इधर ही से बन जाता है। ये व्यूअर्स दीप एक कंपनी है इंडिया की, उनके पराठे, नान, पनीर पराठा, मूली पराठा, प्लेन पराठा, आलू पराठा, मेथी पराठा, ओ माय गॉड। ये क्या है? हमस्टल पराठा, होम स्टाइल। और वो है पूरन पोली। क्या? पूरन पोली, तंदूरी रोटी, तंदूरी नान। ये हमने बहुत खाया जी। शान के अनियन पराठा, बेकार है। गार्लिक पराठा नहीं, शुरू में खाया था, बड़ा मजा ये वो आता ना था। लेना, अच्छे नहीं। लो जी मुइज़ ने फेल कर दिया, मत खरीदना। दीप अच्छे हैं, दीप। शान ने कैसे? शाना। शाना में स्मेल है। अच्छा। स्मेल फैलती है। अच्छा जी, चल ये अचार देखें शिजान के। हमारा शिजान कनाडा में छाया हुआ है। नेशनल, मिचेल्स, शिजान, ये सब है इधर। ये शान के, ये देख लें, ये शान के। ये सब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
इन सब की चीज़ें इधर। मुरब्बे, मुरब्बे भी, सेब, केला मुरब्बा, एप्पल मुरब्बा, गुलकंद, वो एक गुलकंद भी है। गुलकंद, Oh my God. ओए, निरा टार्जन स्टफ, टार्जन, हाँ, टार्जन, टेडाला टार्जन। ये भी देखें हमारे पाकिस्तान की सैमसंग, काला खोला भी है भाई, वाह, वाटिका, काला खोला, ये सब पाकिस्तानी नहीं है। ओलिविया, ये देखें ये, हा, बचपन याद आ गया। तिब्बत स्टिल में, आमला, सब पाकिस्तानी, इंडियन। A few moments later. ये मोए सोचो ना मस्त होकर देख रहे हैं। मैंने कहा सर थोड़ा सा आपको इनका मंजर दिखाती हूँ। उनका एक बंदा, इनका दोनों का एक बंदा रहेगा। दोनों को कोई होश नहीं, दोवां ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਐਨੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ अब रेड टीम ने डाला है कि ब्लू टीम ने? निकल जाए कलर बना दिए। पिंड पर पसीना आया। हम खा रहे थे चिप्स बनाई अभी पिज़्ज़ा ने, तो मैंने कहा चलो थोड़ी मुझे भी दो। मैंने खाई है लेकिन ज़्यादा ही पेट भर गया। वो देखो तालियां बज रही हैं, ये देखें उन्हें कोई पता नहीं मैं बना रही हूँ। मैं भी उन ड्रामों की तरह उनका चोरी चोरी ले रही हूँ। आपको पता है ना जो हमारे ड्रामे चलते हैं साजिशी ड्रामे, ये अब मैंने कहा नीचे उतरूँ और ज़रा थोड़ी देर बाद थोड़ा सा काम करके वॉक करने जाऊँ। शाहजहां बाहर है, अंदर पंखा चल रहा है, ये एसी भी लगाओ ना तो सबको करने लग। वो आ गए शाह बाबा जानू आप चाय पिलाए। ये साथ जो काम कर रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं जो, तो वैसे एक बात है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, इस तरह पसीने निकले होते हैं ना, तो चाय का इतना मजा आता है कि हाँ ये भी सोच- बात है, ये भी बात है। चाहे दिल करे ना करे आपको बड़ा, तो इसलिए मैंने कहा उनको ज़रा मज़ा दें। तो फिज़ा तकरीबन मेरा ख्याल है 35 मिनट मुझे लगे हैं। मैं एंटर हुई हूँ ना जब घर में वॉक करके, जी तो 35 मिनट लगे हैं। बाहर इतना अच्छा व्यू था, सब पार्क में तो खलकतें बैठी हुई हैं, कुर्सियाँ बिछा के अपनी कुर्सियाँ ले आते हैं, ग्रुप बने हुए हैं और मर्द भी बैठे हुए हैं, औरतें अपना अलहदा बैठी हुई हैं। तो खैर मैं गुजर अच्छी पीनी हवा चल रही थी, ठहर के ऐसे बड़ा मज़ा आ रहा था। छूती थी जब ना चेहरे को और इस तरह, तो बहुत मज़ा आता था। तो अभी हाँ नहीं, मैंने कहा ये जो हमारा कल्चर है ना, इस एरिया का ये एडवांटेज है हाँ बड़ा कि ज़बरदस्त। वो उधर जो पार्क है उसमें शावर्स चल रहे हैं, बच्चे नहा रहे बच्चे हैं, नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, माएँ इधर बैठी हुई हैं एक साइड पे, कोई झूला झूल रहा पापे है। जो इधर बैठे हुए हैं, और कोई ताश खेल रहे हैं रोड के ऊपर ही, मतलब रोड के ऊपर नहीं, पार्क में। ग्राउंड पार्क के अंदर टेबलें लगी हैं, कुर्सियाँ ली हुई हैं, चाय पकड़ी है उन्होंने और मौज कर रहे हैं। मौज पड़ी है वैसे उस वो पार्क में। मोइज वॉक करके आया ना उधर से, बस स्टॉप से उतर के वहाँ से वॉक करके आता है, तो उसने फर्स्ट टाइम गौर किया बाकायदा, अच्छा तो उसने कहा कि ये तो बड़ा लाइवली है। बड़ा लाइवली, हमें भी जाना चाहिए कभी कभी, चारों बैठ जाएं, कुर्सियां ले जाएं ना अपनी। उसने कहा मैंने तो कभी ये नहीं देखा हाँ। कि इतना कुछ पकौड़े चल रहे हैं, कह के मार रहे हैं और हाथों पे हाथ हैं। बूढ़े लोग, बड़े जो बुजुर्ग हैं वो थे,
लेकिन औरतें भी बहुत हैं, बच्चे भी हाँ बहुत हैं। मतलब उनके बच्चे, उनके पोते पोतरियाँ सब उधर खेल रहे हैं, और वो बहुएं भी फिर रही हैं, दामाद भी भाग रहे हैं, बच्चे भी भाग रहे हैं। मतलब बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त जो है ना माहौल होता है। बस मैं फिर भी साथ ही एल्बियन मॉल है, साथ रोड ही क्रॉस Albion- करें साथ ही हाँ। एल्बियन मॉल है। नो फ्रिल है, No साथ frill ही है, सब सनी कुछ है, है। टिम हॉटन है, बेंचमार्क होटल है। मतलब ये एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है कि जिधर आपको क्लिनिक मिलते हैं, फैमिली डॉक्टर और वॉक इन क्लिनिक, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, हर चीज़ आपके 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। विद इन 10 मिनट्स आप पहुंचते हैं, विद इन 10 मिनट्स। तो ये बड़ा अच्छा एरिया है इटोबिको, बिल्कुल ये टोरंटो का एंड ही आखिरी है ये टोरंटो का, और उसके बाद फिर मिसिसागा, बॉर्न और मिसिसागा। बॉर्न और ब्रैम्पटन, ये 3 हमें लगते हैं हमारे एजेस वो पे ना पिछला है। इटोबिको। तो मेरा ख्याल है कि नेबर आदल भाई आए हैं, तो पहलू ये असद गए हैं देखने के लिए उनके क्या बात है। हाँ तो बस ऐसा ही है। बहरहाल अब रात हो गई है, शाम हो गई, मैंने कहा अल्लाह हाफिज़ करते हैं। और असद साहब मोहित फिज़ा जान भी ऊपर, अब मोहित के साथ सो जाएगी क्योंकि इनका तो टाइम होने को है। इन 9 बजे ये बेड पे चले जाते हैं, 9:30 सो जाते हैं, आधा पौना घंटा। ये फिज़ा कहती है मैं 10 बजे सोती हूँ, मैं भी जाके 10:30 सोती हूँ। मैं नमाज़ें भी पढ़ूंगी अभी और जाके सो जाऊंगी, और सो तो नहीं जाऊंगी, लेट जाओ, लेट बुक जाते हैं। पढ़ूंगी। आजकल एक बड़ी दिलचस्प बुक आई हुई अच्छा है, अच्छा, बड़ी मजे की, पुरानी कदीम इंतजार हुसैन की है। क्या नाम बड़ा है? पुराना कदीम, हमारे मतलब बहुत अच्छे राइटर हैं पाकिस्तान के इंतजार हुसैन। छोटा सा एक नावल ही है, दिन और दास्तान। बिरयानी। दिखाएं, नहीं वो कह रही ये थी कि आदिल मैं, भाई ने दी है। ओह माय ये तो मेरे favorite आ गए ये हैं। तो इस वक्त खाने वाला था इतना पुलाव आ गया और गरम। नहीं वो मटरों का पुलाव है और कबाब है साथ। ओए होए ओए होए 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 होए। मेरी भाई कमजोरी, जिंदाबाद। मेरी कमजोरी आ गई है। नहीं तो आप खाना है इस वक्त, नहीं, और अच्छा नहीं मैं भी कोई भी नहीं खा रहा, तो बाहर ही रहने दे, अभी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तो ये देखें जी, हम छाया गिरी इधर हमने उसी तरह चलाई हुई है, हमारी तरफ से उधर जाता है, उधर से इधर आता है। तो एक पाकिस्तान का प्यारा सा माहौल रखा हुआ है। अब पाकिस्तान में पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे अब भी है। उस वक्त मेरे अम्मी जी जरूर भेजते थे, कोई खास चीज़ पकाते थे, ये फटाफट उनको दे और हमारे देखिए, हाथ ही भेजते थे। अभी अभी बात कर रहे था मैं कि मोइस कह रहा था कल्चर, और मैं भी कह रहा था कि इधर बड़ा थिक कल्चर है, एग्जाम्पल आ गई। स्ट्रॉन्ग, और साथ ही सबूत भी अल्लाह ने दिखा दिया आपको कि वो जो है आदिल भाई जो है वो लेके आ गए। उन्होंने मटरों का पुलाव बनाया हुआ था, और साथ मेरा ख्याल है ये शामी कबाब है शायद, या कुछ ऐसा है ना। हाँ तो बड़ा अच्छा। चलो इजाज़त लेते हैं, सब बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो गई हैं, और मगरिब की अजान होने वाली है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हाँ दुआ है कि बड़ा प्यारा दिन अल्लाह ने गुजारा है। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती के साथ, सलामती के साथ, और आप सबको भी सलामती दें, सेहत तंदुरुस्ती दें, और खैर से हम सोएं और खैर से जागें, और एक नया दिन, नया व्लॉग लेके हम सारी फैमिली फिर आपके पास आएंगे, फिर हाज़िर होंगे, फिर अदा बर्स करेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर मेरे अल्लाह का हुक्म होगा तो। इजाज़त दें। हमारी आखिरी जो रिक्वेस्ट होती है सजान, याद है आपको? ज़रा आज आप बोल दें, आज आप बोल दें। दुआ करें हमारे लिए, कोई जो है लॉटरी निकले उसकी दुआ करें, उसके बाद कोई मेरे जो है सेहत तंदुरुस्त, बिजनेस शुरू हो जाए, और सेहत तंदुरुस्ती तो खैर हमेशा मांगी है। ये लाइक लुई कमेंट्स ये कहेंगी, मैं तो अपनी दिल की बात करूँगा, लॉटरी जीत जाऊँ बस। लॉटरी तो एक जुबा है, और आपको रिक्वेस्ट करना एक मोहब्बत है, तो मोहब्बत की बातें शाइना सब तो करती है, आपको पता है। तो कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्यू करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस व्लॉग की रीच जो है ना बहुत फैल जाए। ये जो फूलों का छोटा सा भी गुलदस्ता है वो इतना बड़ा हो जाए, और कई गुलदस्ते हम इधर 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 रख के बैठे हैं, और दरमियान में हम बैठे उन गुलदस्तों से उनकी खुशबुएं ले रहे हैं।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।